So we had learned in chapter number 5, understanding elementary shapes, till today about many of the geometrical shapes. Starting from line segment. Line segment से हमने शुरू किया. Then after we had understood about the measurement or the comparison of the length of the line segment. Okay. Then after we had learned about triangles. Before triangle we had learned about angles. Angles, how to measure angle, what is the use of protractor, what is the use of rounder, how to form circle. These all things we had learned in triangle topic. Okay. Then we had learned about the types of the triangle. How many types of triangles are there? 6. Okay. Which are there? Equilateral, So I repeat, if all sides are unequal, it is called scalene triangle. Two sides are equal, isosceles. All sides are equal, equilateral. One angle, right angle, right angle. All angle acute, acute angle. One angle obtuse. These are the types of triangle. And triangle is a closed figure made up of how many line segments? 3. And how many angles it has? 3. So it is a closed figure made up of 3 angles and 3 sides. Okay. Then after we had learned about the quadrilateral. Yes. So quadrilateral is also a quadrilateral is also a closed figure. It has 4 sides and 4 angles. That's why it is known as quadrilateral. And we had learned about the different types of quadrilateral also. Can you tell me the types of quadrilateral? One is left. Parallelogram. Okay. So different types of quadrilateral also we had learned based on their sides, parallel or not, their angles and are square, which has all 4 sides equal and 4 angles equal, right angle. Yes. Rectangle, which has opposite sides equal and all 4 angles equal 90 degree. Okay, rectangle. Then parallelogram. Opposite sides are parallel to each other and equal in measure. Rhombus. All 4 sides equal. Okay, which is called rhombus. Then trapezium. Only one pair of opposite sides is parallel. That is known as trapezium. So all these types of quadrilateral also we had learned. Then in the last period we had learned about the polygon. The definition of polygon is a closed figure made up of line segment. 2 conditions are required for the polygon. One is it must be a closed figure. And second one, it must be made up of line segment. Okay, all sides of the closed figure must be a line segment. Then and then only it is known as polygon. And based on polygon, I have given you the exercise 5.8 and I have posted its solution also, है ना? मैंने solution भी post किया है ना आपको? हाँ, तो वो solution भी बेटा आपको पता नहीं चला क्या करना था? कि how to draw hexagon, that is not clear in your mind. और वास्पर ने बोला कि जो फर्स्ट वाली फिगर थी वो ड्रॉ नहीं कर पाया, बराबर? तो मैंने आपको बताया था इसलिए जाते 1 मिनट वो टाइम पे आपने अटेंशन नहीं दिया होगा तो आपको नहीं पता चला. It is easy to draw that one figure. Let me show you the first one figure of 5.8. यहाँ से शुरू करना था आपको, बराबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Simple है? I gave you the hint also. कि what smartest way to use when you draw the figure. जब भी आप ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कोई भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर दो, देन हॉरिजॉन्टल कोई भी मेजरमेंट, फिर जो वर्टिकल ड्रॉ करती हो ना वो इससे बड़ी होनी चाहिए. देन जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो वो ये से बड़ी होनी चाहिए.
फिर जो वर्टिकल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, फिर जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, फिर जो वर्टिकल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, फिर जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, फिर जो वर्टिकल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, फिर जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो वो यहाँ से आगे आना चाहिए, एंड फिर स्मॉल वर्टिकल लाइन। ठीक है, दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द फर्स्ट फिगर which was given in 5.8 axis। अभी बात रही हेक्सागोन। कोई किसी के पास लंबी रूलर है? Yes, ma'am. Yes. Just give me the long one ruler। या चलो फाइन। तो हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम देख ले। तो हेक्सागोन में कितनी साइड आती है? 6 साइड। ठीक है, तो पॉलीगॉन की हम अभी बात करें। ठीक है, तो 6 साइड आती है। तो 6 साइड्स में I show you yesterday how to draw the hexagon. It has 6 sides और आपको रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना था। मानिए I told you कि कोई एक मेजरमेंट फिक्स ले लेना, वही मेजरमेंट की पूरी साइज आनी चाहिए। समझो सपोज हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो मैं यहाँ ट्राई करूंगी 10 सेंटीमीटर लेने, बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर, वही उसके अपोजिट साइड में ले लेती हूँ 10 सेंटीमीटर और इसके एग्जैक्टली अपोजिट मुझे ड्रॉ करना, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं इसको 10 सेंटीमीटर इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर और ये भी अप्रोक्सीमेटली मेरा 10 आना चाहिए। मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया तो ये मुझे क्रॉस करना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, वैसे इस तरफ मैं 10 ले लूँ, ये 10 हो गया और ये 10 ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। 6 sides must be there and regular word shows us that all sides are of equal। ठीक है, तो रेगुलर वर्ड है तो इस तरह से आपको करना। क्लियर हो गया अपना? चलो, नाउ वी वर ऑन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमने डिफरेंट साइड्स के पॉलीगॉन समझे। इफ it has only 2 sides, is it possible to form a polygon? No. So minimum how many sides we need? 3 sides. So if a closed figure formed by 3 sides, it is known as if 4 sides. Quadrilateral. What is its pronunciation? Quadrilateral. If 5 sides, pentagon. If 6 sides, 7 sides, octagon. 8 sides, octagon, है ना? Then nonagon भी आता है जो 9 sides, and decagon which has 10 sides। ठीक है, तो ये हम पॉलीगॉन लास्ट पीरियड में समझे और पॉलीगॉन के बेस पे जो एक्सरसाइज थी 5.8, आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटेड इन योर नोट। Yes, ma'am. So now we are moving ahead with the next topic, which is 3-dimensional shapes. Many of the shapes or objects are there surrounding us at our home, which are 3-dimensional. Let us take one example of refrigerator. First of all, refrigerator we all are using, है ना? हम सबके पास है और हम यूज कर रहे हैं। तो जो रेफ्रिजरेटर हमारे घर में रहता है, it has certain height. उसको हाइट होती है, फिर उसको लेंथ भी होती है, बराबर है, ब्रॉड होता है और डेप्थ भी होती है, डीप भी होता है, तभी हम अंदर कुछ रख सकते हैं ना। मीन्स इट हैज हाइट, इट हैज विड्थ एंड इट हैज डेप्थ। तो लेंथ, हाइट एंड डेप्थ दोनों उसको होता है। लेंथ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वो भी बोल सकते हो। किसी भी LBH इस तरह से जनरली हम उसको डिनोट करते हैं। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ एंड H मीन्स हाइट। तो इस तरह से हम ऐसे जो शेप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं 3-dimensional shape which has 3 dimensions। हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है एंड डेप्थ भी होती है, जो कि ब्रेथ बोलते हैं, डेप्थ भी होती है। सिंपल एग्जांपल मैंने दिया रेफ्रिजरेटर का, इट इज अ 3-dimensional शेप। ओके, अभी रेफ्रिजरेटर में आप देखो ना तो फ्रंट साइड रेक्टेंगल होती है, बैक साइड भी रेक्टेंगल आएगी,
बेस कई कई जगह पे रेक्टेंगल होता है, कहीं पे स्क्वायर भी होता है. रेफ्रिजरेटर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो स्क्वायर बेस भी आ सकता है, टॉप एंड बॉटम स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं. फ्रंट एंड बैक रेक्टेंगल होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उसकी कितनी साइड हुई? नो, 6. इट हैज 6. लेफ्ट राइट कहाँ गए भाई? टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक. तो 6 साइड्स हो गई कि नहीं? तो वो 3 डायमेंशनल शेप है. लेकिन आप जब रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हो तब आप कितनी साइड को देख सकते हो? 4 साइड को देख सकते हो. फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड टॉप, है ना? बॉटम एंड बैक आप नहीं देख सकते. इट डजंट मीन कि इट हैज नो बॉटम एंड नो बैक. इट हैज, बट इट इज इनविजिबल. तो जब भी हम 3 डायमेंशनल शेप्स को देखते हैं, at that time some part of the 3 dimensional shape can be visible and some part of the 3 dimensional shape can be invisible. तो हमको वो इमेजिन करना है, जो इनविजिबल पार्ट है वो शेप क्या है, उसके कितने फेसेस है, उसके कितने एजेस है. तो आप सबको अभी मेरे तरफ भी ध्यान देना है. जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उनके लिए मैं बोल रही हूँ. तो दिस इज 3 डायमेंशनल शेप. These you people are using every day. बॉल, स्मॉल साइज बॉल भी घर में हमारे पास रहता है. आप ग्राउंड पे वॉलीबॉल फुटबॉल प्ले करते हो, वो भी है. इट हैज अ स्फीयर शेप. वो शेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए. ठीक है, स्फीयर शेप. बट व्हाई इट इज 3 डायमेंशनल? जब भी हम फ्रंट साइड से देखते हैं तो बॉल ऐसा हमें दिखेगा, लेकिन हम सर्कुलर शेप पढ़ गए हैं. सर्कुलर शेप जब हम पढ़ते हैं, कोई भी सर्कल है हमारे पास, तो उसको ये भी डायमीटर है उसका, ये भी उसका डायमीटर है, ये भी उसका डायमीटर है. माने किसी भी एंगल से आप देख लो, मैनी ऑफ द डायमीटर्स आर देयर एंड ऑल इक्वल मेजर, है ना? तो जो स्फीयर शेप होता है उसको सर्टेन हाइट भी होती है, हाइट होती है उसकी, बराबर. बॉल हम पकड़ते तो इस तरह से पकड़ते हैं कि नहीं? तो ये जो लेंथ हुई वो उसकी हाइट हो गई. उसको विड्थ भी होती है, ब्रॉड भी होता है ऐसे, और उसको डेप्थ भी होती है, क्योंकि फ्रंट बैक में भी गैप होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ 3 डायमेंशनल शेप. देन कोन पे जाए. आइसक्रीम कोन आप जब फ्रंट से देखते हो तो ऐसा दिखता है, लेकिन उसका पूरा सर्कुलर शेप है टॉप. ठीक है, और बैक साइड भी पूरी ये कवर्ड है, जितना सर्कुलर शेप है उतना वो कोन कवर्ड है. तो इट इज आल्सो 3 डायमेंशनल शेप. उसको भी हाइट भी हो गई, लेंथ भी हो गई और डेप्थ भी हो गई, है कि नहीं? इस तरह से अंदर जाएगा तो वो भी हो गया. तो वो 3 डायमेंशनल. देन सिलेंडर. सिलेंडर कैन इजीएस्ट एग्जांपल आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो आप. मैं नहीं पीती इसलिए आप लोग बोलते, क्योंकि आई नेवर ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स. मैं कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती. इट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर अवर बॉडी. वो नहीं पीना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स है ना, उसको अवॉइड करो, क्योंकि उसमें है ना मैक्सिमम ऐसी शुगर आती है जो फ्रुक्टोज वगैरह से बनती होती है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल. फ्रूट्स का वो नेचुरल शुगर, वो कभी भी हमको हार्मफुल नहीं है. लेकिन उसी फ्रूट्स में से निकाले गए जूसेस अवॉइड करो. यस, फ्रेश जूस पी सकते हो घर में, लेकिन रेडीमेड जो टीन आते हैं, जो आप टीन ऑर्डर करके टीन लेते हो आप लोग पिज्जा के साथ, बर्गर के साथ, इट इज मोस्ट हार्मफुल थिंग फॉर यू पीपल, फॉर अवर बॉडी, है ना? तो बॉडी को वो बहुत नुकसान करते हैं, तो वो नहीं पीने चाहिए. लेकिन आप पीते हो, इट इज योर चॉइस, दिस इज माई चॉइस. चलो, तो ये जो है ना उसको सिलेंडर शेप बोलते हैं. फ्रंट से आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस, बट इट हैज सर्टेन एरिया विच इज इनविजिबल, जो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है. इट इज दैट. ठीक है, तो इसको भी आप देखो तो ये सर्कुलर शेप जो है वो उसकी विड्थ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, ये इसकी ब्रेथ. क्लियर हो आप? तो इस तरह से ये भी 3 डायमेंशनल शेप. और अदर 3 डायमेंशनल शेप्स आर गिवन ओवर हियर व्हिच इज क्यूबॉइड. यहाँ पे एक बैग जैसा दिखाई दे रहा है आपको, बराबर है? तो दिस इज क्यूबॉइड शेप. बट द इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड शेप इज मैच बॉक्स.
आप जो मैच बॉक्स यूज करते हो विच इज क्यूबॉइड, योर कंपास बॉक्स इट इज ऑल्सो क्यूबॉइड। अभी उसके देखो एक हाइट भी है, एक लेंथ भी है और एक ब्रेथ भी है। कंपास बॉक्स की भी 3 डायमेंशन है। देखो इसको हम लेंथ बोलते सपोज, ओके ये लेंथ है, ये हाइट है और ये उसकी ब्रेथ। 3 डायमेंशन हो गए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड शेप। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप विद अ रेक्टेंगुलर शेप। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्यूबॉइड। नाउ डाइस जो आप यूज करते हो खेलने के, है ना? हाउ मेनी फेसेस आर seen over here? 1, 2 and 3. 2 are there, 4 are there and 6 are. How many are invisible? Still 3 faces are there which are invisible. 1 is not there, 3 is not there and 5 is not there. Okay, so exactly opposite of this 1 is there, exactly opposite of the another one is there, exactly opposite of this third one is there. Okay, so total 6 faces a dice has. Okay, same way the another figure is given here which is pyramid. आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा पिरामिड। हम लोग घर पे भी कई लोग पिरामिड रखते हैं, कार में भी रखते हैं। पिरामिड का बेस जो आता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आता है और इट हैज 3 ट्रायंगुलर फेसेस। उसके पास ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 ट्रायंगुलर फेस है और जो बेस बनता है वो आइदर स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें अब हमको पढ़ना है फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप्स। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस दी गई है टेक्स्ट बुक में। सो let us start in this stand with the figure. In this figure it is indicated that this one is the face. ये जो पूरा कवर किया गया है ये फेस है। ये which shape it is? शेप कौन सा है ये? क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? What is the difference between cube and cuboid? Nothing. Cuboid is rectangle and cube is square. Yeah. Cube is made up with a square shape and cuboid is made up with rectangle shape. So cube को आप देखोगे ना तो हर एक एंगल से इक्वल दिखता है। Yes. और रेक्टेंगल अभी हमने वो बैग देखी और मैच बॉक्स देखा या कंपास बॉक्स देखा है ना, तो वो डिफरेंट दिखता है। हाइट, विड्थ और लेंथ डिफरेंट होती है। यहाँ पे सारी साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। So this is the difference between cube and cuboid. Cube has all sides of equal measures. That's why we can say that it is a square shape. And cuboid has different measurement of length, height and breadth. That's why it is known as cuboid. Okay, so ये cube है। Cube की faces, यहाँ पे face हमको दिखाया गया है एक, this one is the face. 1, 2 and 3. 3 are visible. How many are invisible? 3 are invisible. Just now we had learned with the dice. Dice is just like a cube, है ना? तो 6 faces it has. Okay, so face की definition it is given over here. You people have to underline this. Each side of the cube is a flat surface called a flat face or a simple face. Definition of face is given in this statement. That the cube is a flat surface called its face. Okay, यहाँ पे ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है to understand the definition of face. Face किसे बोलते हैं? ठीक है? Now let us move ahead. The second one is given over here H. Pronunciation is H. E-D-G-E-H. Okay. So two faces meet at a line segment called an edge. The line segment is known as edge. But which line segment is known as edge? Which makes these two faces. यहाँ पे ये 2 faces को ये edge जो है वो intersect कर रही है। तो ये edge. How many edges it has? 1, 2. फिर ये आएगी क्या? Yes, because ये invisible है ना, पूरा यहाँ पे complete होगा क्यूब।
तो भी ये दोनों को तो कनेक्ट तो करती है ना, दो फेसेस को। ये भी कनेक्ट करता है, ये भी कनेक्ट करता है। तो हाउ मेनी एजेस इट हैज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। क्यूब को कितनी एजेस होती है? 12। तो एजेस का भी ये अंडरलाइन करो, लाइन सेगमेंट है। एज मींस इट इज अ लाइन सेगमेंट which connects two faces. Then after vertex, you people are completely aware about the vertex. Yes. And vertices, it's a plural form of vertex. How many vertex a cube has? So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 vertices a cube has. Yes. ठीक है, ये यहाँ पे पूरा क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट साइड दिखाई दे रही है, ये भी फ्रंट साइड दिखाई दे रही है ना। तो ये पूरा क्यूब है। क्यूब एग्जैक्टली ऐसे होगा। ठीक है, चल क्लियर हो अभी? व्हाट इज फेस, व्हाट इज एज एंड व्हाट इज वर्टेक्स? चल लेट अस मूव अहेड टू द प्रिज्म शेप. दिस एग्जांपल वाज गिवन ऑफ क्यूब. नाउ प्रिज्म शेप. प्रिज्म शेप में आप देखो तो बेस जो है ना उसका रेक्टेंगल है। ये फ्रंट में ट्रायंगल है, बैक में भी यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। समझ में आया? और ये फ्रंट में रेक्टेंगल है, बैक में भी ऐसा ही रेक्टेंगल है प्रिज्म। ठीक है, तो ओनली 2 साइड्स आर विजिबल जस्ट नाउ, बट इट हैज टोटली 5 साइड्स. बेस को काम करे तो बेस को ले तो देखो हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म. तो the triangular face is also known as X base. It is a triangular prism. ये triangular prism है, क्यों? क्योंकि ये इसकी फ्रंट एंड बैक साइड जो है वो ट्रायंगुलर है, और वो बेस मानी वो ट्रायंगुलर शेप पे भी उसको हम स्टेडी रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसलिए उसके बेस को ट्रायंगुलर बेस भी बोलते हैं. तो faces is a triangle, one of its face is triangle, so it is called a triangular prism. इसको कैसे बोलते हैं? Triangular prism बोलते हैं. The triangular face is also known as its base. Triangular face जो है उसका, उसे भी हम बोल सकते हैं बेस उसका. ठीक है, तो a prism has 2 identical bases. उसके पास 2 identical bases है. क्यों? One is triangle, another is rectangle. देखो ये भी रेक्टेंगल शेप भी उसका बेस हो सकता है और ट्रायंगल शेप भी उसका बेस हो सकता है. ठीक है, तो 2 identical bases it has. The other faces are rectangles. मानी 2 faces, 3 faces are rectangle and 2 faces are triangle. So prism has 2 types of faces. One is triangular shape, another is rectangular shape. ठीक है, तो इसे भी अगर समझने के लिए अंडरलाइन करना है तो ये भी कर देना. चलो, then after pyramid shape is given over here. pyramid shape में क्या है? Let us dive into this slide. This is pyramid shape. pyramid shape में आप देखोगे तो triangles are there. A pyramid is a shape with a single base. उसका single base है. The other faces are triangles. Single base में square भी हो सकता है, rectangle भी हो सकता है in the pyramid. Okay. So base उसका invisible है अभी, लेकिन उसके जो faces है तो वो उसकी shapes जो है वो triangular shape. और जो shape आते हैं, faces आते हैं, वो faces 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं. ठीक है, तो पिरामिड का ऐसा शेप है. तो पिरामिड इज व्हाट इज पिरामिड? इज अ शेप विथ अ सिंगल बेस, द अदर फेसेस आर ट्रायंगल. हियर इज अ स्क्वायर पिरामिड, मानी इसका बेस क्या है? स्क्वायर है. दैट्स व्हाई इसकी अपोजिट साइड जो है वो यहाँ पे आएगी, इसकी अपोजिट साइड यहाँ पे आएगी. इसका बेस इस तरह से है, so that's why it is a square. So square base pyramid, it is given in this figure. This is a square base pyramid. It is known as square pyramid. ठीक है, तो ये सब आपको अंडरलाइन इसलिए करना है
कि आपको MCQs में कहीं पे कहीं आ सकता है। चलो, then after it is given over here with 3 other shapes. One is cylinder shape, another is cone shape, and third one is sphere shape. Okay, so here the question asked over here, the cylinder, the cone and the sphere have no straight edges. No straight edges. What is the base of a cone? Cone का base क्या आएगा बोलो? सर्कल. कोन का बेस क्या आएगा? ठीक है. The cylinder has 2 bases. सिलेंडर के पास 2 बेसिस है. क्या बेसिस है उसके? सर्कल. What shapes are they? So they are circle. ठीक है. Of course, the sphere has no flat surface. Think about it. स्फीयर के पास कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है. अभी हमने सोचा कि जब हम बॉल देखते हैं तो फ्रंट साइड से देखते हैं तो भी सर्कल दिखता है. किसी भी एंगल से देखो आप बॉल को, जो कि स्फीयर का एग्जाम्पल है, इट विल बी विजिबल अ सर्कल, है ना? वो सर्कल ही दिखेगा. आप बॉल हाथ में रखोगे तो, लेकिन वो हर एक साइड से सर्कल. मानी आप इसे बॉल बोल सकते हो कि इसको यहाँ पे भी एक है फेस, ये फेस भी है उसका, फिर ये फेस भी है उसका, ये फेस भी है उसका. ठीक है. स्फीयर को है वो many circles are there in sphere, we can say that. Clear हो आप? Sure. Then after let us move ahead to fill up these blanks. ये blanks आपको fill up करनी है. One example is given for the cuboid. A cuboid looks like a rectangular box. ये cuboid का shape है. ठीक है. It has 6 faces. 1, 2, 3. ये top है, उसके नीचे एक bottom है. 4 हो गया. फ्रंट है, उसके पीछे एक बैक है. 5 हो गया. राइट है, इसके आगे एक लेफ्ट है. तो 6 फेसेस हो गए उसके. क्लियर हो? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट. चलो. देन ईच फेस हैज 4 एजेस. हर एक फेस को 4 एज है. देखो 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ऐसी बैक साइड भी आए. लेकिन ईच फेस बोला है यहाँ पे कि एक फेस में कितनी एजेस है. तो एक फेस में 1, 2, 3 and 4. ठीक है. चलो. ईच फेस हैज 4 कॉर्नर्स. 1, 2, 3 and 4. हर एक फेस को 4 कॉर्नर्स है. सेम वे यहाँ पे द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू क्यूब. क्यूब का शेप और क्यूबॉइड का शेप में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा. ऑल साइड्स आर इक्वल ओवर हियर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओवर हियर. ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप. क्लियर हो? क्यूब एंड क्यूबॉइड. चलो. नाउ अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड whose edges are all of equal length. It has dashed faces. 6 faces. यहाँ पे हिंट तो दे दी भैया पहले आपको. It is a cuboid with all sides equal. तो इसका ही जो आंसर है वही आएगा यहाँ पे. ठीक है ना? तो क्या आएंगे? 6 faces. Each face has 4 edges. Each face has 4 vertices. है ना? और एक फेस मानिए एक हो गया. How many vertices it has? 1, 2, 3 and 4 vertices. तो यहाँ पे you have to write down 6, 4, 4. ट्रायंगल पे आगे बढ़े. Triangular pyramid is given here. Pyramid shape is given here, and one important point is given for this pyramid here. A triangular pyramid has a triangle as its base. उसका बेस भी ट्रायंगल है. समझो. It is also known as a tetrahedron. अंडरलाइन करो ये सेंटेंस को पूरा. टेट्राहेड्रॉन. इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन. A triangular pyramid has a triangle as its base. बेस भी ट्रायंगल है और उसके जो फेसेस है वो भी ट्रायंगल. सो पूरा जो ट्रायंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन. इट इज अ पिरामिड.
Okay, with the triangular base. Chal. How many faces it has? Three faces. Edges कितने आएंगे? एक फेस के 3 आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पे ईच फेस का 9। कॉर्नर्स कितने आएंगे? 9। आई एम नॉट डैम श्योर, हाँ आप जरा चेक कर लेना आपके हाथ में कहीं पे पिरामिड हो, ठीक है? कॉर्नर्स को चेक कर लेना। चलो आगे बढ़े। स्क्वायर पिरामिड, अभी ये ट्रायंगुलर पिरामिड था, अभी स्क्वायर पिरामिड, उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो उसके कितने फेसेस आएंगे? फेसेस कितने आएंगे भाई? 3 आएंगे, पिरामिड में तो 3 ही आएंगे ना, फेस तो 3 ही आएंगे। एजेस कितने आएंगे? 6 एजेस कितने आएंगे सोचो। ये आपको मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी एक और बैक साइड होगा मेरे हिसाब से 9 या 10, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। कॉर्नर्स कितने आएंगे? एक फेस के कितने आएंगे? 3 आएंगे, ऐसे 3 फेस है तो 9 हो गए, और बेस के ऐड कर लो 3। वाह, चलो। When after a triangular prism looks like the shape of kaleidoscope. Kaleidoscope is an instrument जो कि 3 डायमेंशनल, कोई भी अगर शेप डाला जाए तो वो 3 डायमेंशनल में दिखता है। ओके, तो कैलिडोस्कोप बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों के हाथ में ये पूरी दुनिया है ना, क्या है हाथ में हमारे? पूरी दुनिया। क्यों? किससे पूरी दुनिया हमारे हाथ में है? मोबाइल है कि नहीं? तो वो सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है भाई, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी जानने को मिलती है। तो जब भी टाइम मिले ना तो गेम खेलना बंद करो और सर्च करो कि व्हाट इज कैलिडोस्कोप, तो यू विल गेट द आइडिया। चलो फिर कैलिडोस्कोप, यहाँ पे डिजीजेस लुक लाइक द कैलिडोस्कोप। फेसेस कितनी है? वो प्रिज्म है, प्रिज्म के कितने फेसेस आते हैं? 4। एजेस कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या बैक साइड एक काम कर लो, 9 या 10 आ सकते हैं। कॉर्नर्स कितने आएंगे? 4 5 6 7 8 9 तो आ ही सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? चलो देन आफ्टर अभी 5.9 इज इजीएस्ट एक्सरसाइज, ये तो आप कर लोगे। और ये देख ले एक बार, व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स? ब्रिक, मैच बॉक्स, रोड रोलर एंड अ स्वीट लड्डू, sphere, ठीक है? तो today you people have to complete this part 1. इसका मतलब क्या है? Give 2 new example of या मानिए कोन शेप है, तो ये आपको कोन शेप के 2 एग्जांपल्स और देने हैं। आपकी कैप, बर्थडे कैप, इट इज आल्सो कोन शेप। मतलब उसमें सिर्फ लिखना है या फिर लिखना है, ड्रॉ नहीं करना, लिखना है। स्फीयर में भी लिख लो, क्यूबॉइड में भी लिख लो, सिलेंडर में वाटर टैंक आ गया, और एक आपका ये कोल्ड ड्रिंक टैंक आ गया, हो गए। इस तरह से आपको हर एक जगह के 2 एग्जाम्पल मिलते हैं। I will post the solution so you will get the idea.